Hi everyone, how are you all doing? All good? Hope you all are doing really good. Welcome to NCERT. I am back with another amazing session where I am gonna give you just small tips how to balance class 12 board exam with JEE because JEE is just going on. JEE Mains चल रहा है आपका, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज हम. ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, छोटा मोटा डिस्कशन. ओके Okay, so make sure that you join the Telegram group and subscribe the channel and hit that bell icon so that you do not miss any notification. An amazing thing is gonna happen, which is this Vedantu online talent examination. So we are basically on a talent hunt. ठीक है, तो ये एग्ज़ाम नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम नहीं, कम बैक है ना. तो ये it will make sure that you come back in the field. You are back with your good preparation, and along with it, the important thing is that we'll be providing you in-depth report like it involves all India rank, subject wise rank, state wise rank, and question level time analysis. Everything will be provided to you. ठीक है, I think each of these information is very very important. It helps you in analyzing your performance, in analyzing your flaws, your mistakes, है ना, so that you improve of course. ठीक है, और इसके साथ साथ एक्साइटिंग प्राइजेस, सबसे एक्साइटिंग तो ये चीज़ है, यू कैन एक्चुअली गेट टू बी द CEO ऑफ वेदांतु फॉर अ डे. एक दिन के लिए द बॉसी फीलिंग यू कैन गेट. ओके, educational trip to NASA, telescopes, laptops, and other amazing prizes for daily challenges. These prizes are there. ठीक है, Eco., Lenovo, Samsung. Then we have OnePlus 60, Fossil Watch, and all. Lot of things are there. You must be knowing well about these things, है ना? Okay, so are you excited about VO.T.E? Yes, everybody is. So wait till the end. I'll show you the link. So basically this is the link. इस link पे आपको click करना है. ठीक है, so then you will be registering yourself for this VO.T.E examination. What do you have to do? You have to fill in your details. These are the details, and then your VO.T.E ID card will be generated. Then you have to choose your days, one of these days on which you want to appear for the examination. जब भी आप फ्री हो, जब भी आप टाइम निकाल सकते हो. ठीक है, नाउ फॉर प्रिपेयरिंग फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम यू शुड नो द एग्जाम पैटर्न ऑल्सो. तो 11th नीट के लिए 90 क्वेश्चंस +4 -1 90 मिनट्स विल बी देयर. ठीक है, 12th नीट के लिए 180 क्वेश्चंस विल बी देयर, नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना, एंड 180 मिनट्स आर देयर. देन 11th JEE 35 क्वेश्चंस, तो ये मेंस वाला पैटर्न हो गया ना, +4 -1 एंड 90 मिनट्स आर देयर. Then 12th JEE number of questions are increased, +4 -1 +4 0 also. So there will be some questions which do not have any negative marking, and 180 minutes will be there. Time duration is also more. So you can also form groups or squads with your friends, and you can even win bigger prizes. A lot of kids are doing it. I saw it in the groups also. So kids, all the best. So now we come to our point, that is how to balance class 12th board exam with JEE. Lot of people keep thinking about it, but the important thing is that बच्चे, of course lot of people keep struggling about it कि बोर्ड और JEE को कैसे मैनेज करना है, कैसे नहीं, बोर्ड पे कब फोकस करना है, JEE की कब प्रिपरेशन करनी है, एडवांस पे कब फोकस करना है, एंड ऑल. ठीक है, तो बच्चे देखो, बात ये है कि तीनों चीज़ें अलग तो है नहीं, है ना. ऑफ कोर्स योर बोर्ड इंक्लूड्स योर JEE पार्ट ऑल्सो. ठीक है, तो मेंस और जो बोर्ड्स है वो कोलाइड करता है. जैसे अभी आपका मेंस चल रहा है, अभी आपकी बोर्ड की भी प्रिपरेशन चल रही है, सो दे आर बोथ सेम. जस्ट प्रिपेयर फॉर JEE मेंस, योर बोर्ड प्रिपरेशन विल बी डन. आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो, बोर्ड की प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी. ठीक है, बोर्ड्स के लिए एडिशनली यू जस्ट नो हाउ टू राइट द क्वेश्चन एंड मेक श्योर दैट यू डू ईच एंड एवरी NCERT क्वेश्चन. वो तो आप मेंस के लिए भी करोगे, NCERT तो मेंस के लिए भी करनी है आपको. ठीक है, या फिर मैं ऐसा बोलूँ, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स, अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एडिशनली मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग एडिशनल क्वेश्चन फॉर मेंस ऑल्सो, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मेंस टाइप क्वेश्चन. ठीक है, सो दोनों सेम है बच्चे. बोर्ड इज द फाउंडेशन ऑफ JEE मेंस. दोनों को अलग अलग मत समझो पहले, तो तभी बैलेंस कर पाओगे. ओके, ऐसा मत सोचो अब मैं बोर्ड्स के लिए कर रहा हूँ, मैं मेंस के लिए कर रहा हूँ. सो आई वुड से यू जस्ट फोकस ऑन योर मेंस एग्जाम. ठीक है, बोर्ड्स की प्रिपरेशन आप मान लो, अगर आप मेंस बढ़िया से कर रहे हो, NCERT आप अच्छे से पढ़ रहे हो, तो पर्टिकुलरली बोर्ड्स में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके बचते हैं जो आपको आने चाहिए, है ना. थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही तो बचते हैं, बाकी मेंस में न्यूमेरिकल वगैरह तो आ ही गए. न्यूमेरिकल तो आप वहाँ पे भी सॉल्व करोगे. ठीक है, या लिखना कैसे है ये बच जाता है. सो ये आपका आई थिंक 1 मंथ पहले भी हो जाता है. जैसे अब आपके अप्रैल में
एग्ज़ाम्स हैं, अभी और भी शिफ्ट हो गए. सो मई के मंथ में, मई में एग्ज़ाम्स हैं, आई एम सॉरी, मई में एग्ज़ाम्स हैं. अप्रैल के मंथ में यू कैन एक्चुअली गो फॉर राइटिंग द आंसर. आई थिंक दैट विल नॉट टेक मच टाइम, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा. ठीक है ना. तो अलग अलग नहीं है यार, यही है. एडवांस्ड अलग होता है ऑफकोर्स, है ना. जेई मेंस के लिए यू काइंड ऑफ नीड द प्रैक्टिस चाहिए. प्रैक्टिस ज़्यादा करने से, अ नंबर ऑफ क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग, यूल बी एबल टू क्रैक मीन्स, यूल बी एबल टू इवन गेट अ गुड रैंक. और बोर्ड्स तो आपका हो ही गया. एडवांस्ड के लिए यू नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो आप अगर एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बस ये सोचो कि मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ उसको मेरे को डिटेल में समझना भी है. तो आपका बोर्ड्स हो गया क्योंकि आप समझ गए कॉन्सेप्ट को. तो जो भी रीज़न होगा बोर्ड्स में आप उसका आंसर आराम से दे दोगे, आपको ईजी लगेगा कि यार ये क्या मजाक कर रहे हो, है ना. उसके बाद आपका मेंस हो गया क्योंकि आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो क्वेश्चंस की. एडवांस्ड के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई. नाउ यू शुड नो कि इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, इसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है. उसके लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. दैट थिंग यू कैन डू अ लिटिल लेटर, क्योंकि एडवांस में अभी टाइम है. वो चीज़ आप जो प्रैक्टिस है वो आप थोड़ा कम कर सकते हो, थोड़ा मतलब लेट कर सकते हो. ठीक है. साथ साथ थोड़ा थोड़ा कर लो अभी. बाकी पूरा जो फोकस होगा एडवांस का वो थोड़ा आप बाद में कर सकते हो, क्योंकि अभी मेंस और बोर्ड्स आ रहा है पहले तो, है ना. सो या ऑफ कोर्स पीपल, कॉन्सेप्ट इज द की. ठीक है. सो आई वुड से जो भी करो उसको एकदम आपको क्लैरिटी होनी चाहिए उस चीज़ की. बस उससे आपका मेंस भी हो गया और आपका बोर्ड्स तो हो ही गया है. ठीक है. और एडवांस के लिए आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे दैट यू कैन डू ऑफ कोर्स. ठीक है. तो तीनों चीज़ों को आई वुड से साथ लेके चलो, किसी एक भी चीज़ को छोड़ो मत. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स डू इट एट योर ओन वे एंड एट योर ओन पेस. दूसरे से कंपेयर मत करो, उसने इतनी जल्दी कर लिया यार, उसने ये कर लिया. यूर वे ऑफ डूइंग समथिंग विल बी डिफरेंट ऑफ कोर्स. ठीक है. तो अपने हिसाब से अपने तरीके से करो. कम अप विद अ रियलिस्टिक स्टडी प्लान. जितना भी टाइम बचा है उसमें, अभी तो आप मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में ही फोकस करो बस, है ना. तो रियलिस्टिक सा स्टडी प्लान बना लो कि 1 महीना है मेरे को, इसमें ऐसे 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 ये चैप्टर्स करने ही करने हैं, ताकि एक बार एनसीईआरटी हो जाए, मेंस हो जाए. एनसीईआरटी मेंस सेम थिंग. बोर्ड और मेंस में ज़्यादा नहीं है बच्चे फ़र्क. अब तो मेंस वैसे ही अभी जो एग्जाम्स हुए उससे पता लग रहा है, बोर्ड्स और मेंस में फ़र्क नहीं है. जस्ट द डिफरेंस इज दैट कि बोर्ड्स में आपको लिखना होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, है ना. वो मेंस में नहीं करने होंगे. तो थोड़ा सा मतलब यू कैन से मेंस का जो सिलेबस है वो ज़्यादा है, क्योंकि एनसीईआरटी अभी कम हो गई है. एनसीईआरटी का पोर्शन जो है सीबीएसई के लिए वो रिड्यूस हो गया है. बट आई वुड से आप सारा करते जाओ. ठीक है. छोड़ो मत. ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिड्यूस पोर्शन करो. एक चैप्टर कर रहे हो तो उसको बढ़िया से करो. ये तो हैबिट होनी चाहिए कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो बढ़िया से दिमाग में घुसना चाहिए. ठीक है ना. एज आई सेड आपका एडवांस के लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी आपको. ठीक है. So the next thing is, of course, NCERT is the solution. I'm not saying that because I'm a part of NCERT channel. It actually is. ठीक है. जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू आप कुछ भी देख लो, NCERT is the solution. So make sure that all the concepts of NCERT are clear to you. जिस भी टीचर का समझ में आता है पकड़ो उसको, उसके लेक्चर्स देखो. ठीक है. And just make sure that all the concepts, all the questions of NCERT, lot of मतलब plenty of videos, plenty of data you can find on यूट्यूब एंड गूगल एंड ऑल. ओके. तो मेक श्योर वो सब आप कर रहे हो. बोर्ड्स के लिए एडिशनली ये कर सकते हो, यू कैन सॉल्व एक्चुअल सैम्पल पेपर कर लो साथ में. ठीक है. करते जाओ. ओके. ठीक है. सो दैट्स द थिंग. ठीक है. बट अगेन आई वुड से अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बोर्ड्स अपने आप हो जाता है यार, बोर्ड्स अपने आप हो जाता है. ठीक है. साथ में जैसा मैंने कहा 1 महीना रख लो, और या साथ साथ करते जाओ, टॉपिक के साथ साथ करते जाओ. साथ में ही एक टॉपिक आपने कवर किया, उसके मेंस लेवल के क्वेश्चन भी किए और सैम्पल पेपर भी किया. आप देख लेना बच्चे, सैम्पल पेपर आपको बहुत इजी लगेगा. ठीक है ना. क्वेश्चन देखा बस चलो चलो चलो, तो आप यू विल बी लाइक रीडिंग द क्वेश्चंस जस्ट. ठीक है. सो इट ऑफ कोर्स इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ योर जेई मेंस एंड 70 to 80% जेई सिलेबस ऑफ कोर्स. तो एनसीईआरटी हो गई, एडवांस क्लियर तो हो ही जाएगा आपका, अगर एनसीईआरटी क्लियर है तो. ऑफ कोर्स टॉपिक अगर आपको अप्लाई करना आता है, सो फॉर दैट यू अगेन यू हैव टू हैव द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. प्रोवाइड्स डिटेल लर्निंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. तो जिसने भी एनसीईआरटी अगर रीड नहीं किया, एनसीईआरटी ज़रूर रीड करनी बच्चे, बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू आर मतलब आई मीन इफ़ यू आर विद अदर रेफरेंस बुक्स, प्रदीप्स वगैरह ये सब रीड कर रहे हो, एनसीईआरटी ज़रूर रीड करना. एंड एग्जाम्पलर ऑल्सो. एग्जाम्पलर से भी एज इट इज़ क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस में. ठीक है. सो एनसीईआरटी इज़ दिस इम्पॉर्टेंट.
Okay, people, so read, write, retain. Again, just keep on doing the practice, practice, practice. I always say this: previous year question, be it JE, be it board, make sure that you solve the previous 10-year questions. साथ साथ करो, मैं तो यही बोलूँगी. एक टॉपिक उठाओ, उसके 10 साल के जेई के क्वेश्चंस भी. ठीक है ना. जब आप जेई मेन से क्वेश्चन कर लोगे ना बच्चे, तो आपने बोर्ड से मतलब थोड़ा ऊपर लेवल को पकड़ लिया है. ठीक है. ऑफ कोर्स व्हेन यू आर कवरिंग दिस लेवल विल ऑलरेडी बी कवर्ड, है ना. तो बोर्ड तो हो ही गया अपने आप. ओके. So another important thing, make sure that you get proper sleep and stay healthy, because sleep is an important thing. It restores your brain activity, it recovers everything that's there, the tiredness, जो भी थकावट है ब्रेन की, है ना. ब्रेन शुड बी वर्किंग क्लियरली ना, अप्रोप्रिएटली. तो उसके लिए स्लीप बहुत ज़रूरी है. एंड जस्ट डोंट वरी, यू गोना बी ओके. ठीक है. Just trust yourself. You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. ठीक है. सो ये चीज़ें आपके लिए नहीं, सबके लिए हैं, मेरे लिए भी हैं इवन, है ना. हम कई बार अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं. सो डू नॉट डू दैट. Okay, so now comes the Vedantu crash course, JEE and NEET crash course. This is an amazing crash course. और भी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डर लगता है, चिंताएं हैं, सब खत्म हो जाएंगी इस क्रैश कोर्स से. अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, ठीक है, ऑफ 1.5 hour each. डेली यू कैन आस्क डाउट्स फ्रॉम 8 AM till 11 PM. पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, chapter wise assignment, everything is there. So whatever a student needs for boosting up the preparation, boosting up the performance, it's there. ठीक है. तो जेई वालों के लिए बच्चे लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन. जेई एंड नीट लिंक्स आर डिफरेंट. So you have to use this code SPACC in order to get 40% discount, and the course will be available in just 6,000. 6,000 में कोर्स मिल जाएगा. Similarly, NEET के लिए भी link will be there in the description. You have to use this code SPACC to get 6,000 course. 40% discount मतलब. ठीक है. So enroll now. For any queries, you can reach me out through this mail. I hope this video was helpful to you. Now comes my schedule. Class 11 होता है Monday, Wednesday, Friday. Class 12 Tuesday, Thursday, Saturday, right at 2 PM daily. So next week से again live, we'll be meeting live. Okay. So Telegram group join कर लेना. Make sure you subscribe, and if you like the video, hit that thumbs up button, and I'll see you soon. Thank you so much for joining. Bye bye. Bye everyone. Take care. Have a nice day.